So in the last lecture, we have seen how to calculate the total valence electron. Next part जो है that is the skeleton. Okay. Skeleton. Skeleton में देखिएगा, और skeleton में क्या चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा. In skeleton of a particular compound or a molecule, we will be having a central atom and surrounding atom. There will be one central atom and the others will be surrounding atom. तो central atom में ध्यान रखिएगा H and fluorine, hydrogen and fluorine. Fluorine will never be central atom. Central atom का will never be central atom. Will never be central atom. ठीक है. Next point, the less electronegative element will be central atom. Less electronegative element will be central atom. The electronegativity series we have seen. अच्छा, by the way, generally आपको central atom choose करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, because the less दो atom होंगे अगर, उसमें जो होगा that will be the central atom. I will give you the examples and everything. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद वी आर हैविंग क्लोरीन, देन वी हैव ब्रोमीन, आई सी, आई एस सी, इश्क, प्यार है. ठीक है. सवाल क्या है? ड्रॉ स्केलेटन फॉर फॉलोइंग. वी आर स्लोली लर्निंग द स्टेप्स, है ना, वी आर स्लोली लर्निंग. ठीक. बट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, स्टेप करना पड़ेगा. इज एवरीवन राइटिंग टिल हियर? टेल मी. यहाँ तक इतनी जरा सवाल लिख लीजिए. ड्रॉ स्केलेटन फॉर फॉलोइंग, देन यू विल टर्न योर माइक ऑन एंड देन वी विल डिस्कस इट. So my voice is lagging. How about now? It's better, sir. It's better. Hydrogen and fluorine will never be central atom. The less electronegative element is central atom. Raise your hand once you're done. Waiting for Sabiha and Zainab. Jasleen waiting for you. Sir, can you scroll up? आप आओ, ठीक है. I got कुछ नहीं है. disconnected. नो प्रॉब्लम. यहीं तक है बस. स्केलेटन. Just waiting for Jasleen and Sabiha. Waiting for Jasleen now. By the way, तो देखिए पहले एग्जांपल हम आपको करके बता रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल इज CO2. इन स्केलेटन व्हाट यू नीड टू डू, है ना, यू नीड टू कनेक्ट ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स. इसमें एक सेंट्रल होगा, बाकी दोनों क्या होंगे? देयर विल बी, others will be what? Others will be surrounding. तो कार्बन ऑक्सीजन में कौन
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, बताइए जरा, विच इज लेस Carbon. इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। कार्बन हो गया आपके पास सेंट्रल एटम, here and here you will be having oxygen and oxygen. This is how you are going to make the skeleton. Make sense? Yes or no? Please tell me. Carbon इधर और इधर क्या रहेगा? Oxygen and oxygen. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, sir. Then, for example, if you have NH3, NH3, ध्यान रखिएगा, hydrogen and fluorine will never be central atom. So, what will be central atom in this case? In ammonia, what will be the central atom? Nitrogen. Nitrogen. Single bond hydrogen. सब में single bond रखना है अभी, है ना? सब में single bond, nitrogen, hydrogen, hydrogen. Third is, let us suppose if we have something like this, NO2 negative. NO2 negative. Which is less electronegative, nitrogen or oxygen? Which is less electronegative? Nitrogen. Nitrogen. आंसर कीजिए गाइस, तभी आएगा, नहीं तो फिर ऐसे देखते रह जाइएगा सिर्फ आप लोग। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। देन यू विल राइट ईच बॉन्ड इज मेड by 2 electrons from the total valence electron. Total valence electron जितना भी है उसमें से if we are making 2 bonds, that means from the total valence electron we have used 4 electrons. If you are making 3 bonds, then from the total valence electron of the compound we have used 6 electrons. Make sense? Sabiha, Jasleen, Jovita, Shaima, Zainab, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, raise your hand if you're done. चलिए नेक्स्ट आपके पास अब सीधा हम लोग ऑक्टेट कंप्लीशन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा एक एग्जांपल देखते हैं। वन हम लोग करना है CO2, ठीक है। CO2 में सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? टेल मी गाइस। इन कार्बन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन? अरे कार्बन में वैलेंस 4. इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4. 4। टोटल वैलेंस 4 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन हाउ मच? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में? 2. हाउ मेनी 6. इलेक्ट्रॉन्स इन द 6? वेरी गुड। एंड हियर वी आर हैविंग 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो कितने हो जाएंगे? 6 टू 12। 12 plus 4 we have 16 electrons. Now how many electrons are we having? Tell me guys. 16, ठीक है। बी पार्ट क्या करना है इसका? इसका स्केलेटन बनाना है। बी पार्ट क्या करना है इसका? स्केलेटन। स्केलेटन में क्या होगा? कार्बन, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, एज वी हैव सीन अर्लियर। सी जो स्टेप है कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। अब ये चीज याद रखिएगा, स्टार्ट विथ सराउंडिंग एटम। स्टार्ट विथ सराउंडिंग एटम। ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। सी स्केलेटन में हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 थे। इन स्केलेटन वी हैव हाउ मेनी बॉन्ड्स? हाउ मेनी बॉन्ड्स इन द स्केलेटन? टेल मी गाइस। हाउ मेनी बॉन्ड्स इन द स्केलेटन? अरे बोलो। Single bond. 2 bonds ना, 2 bonds है ना। 2 bonds, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन वी हैव ऑलरेडी यूज। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है बताइए, बोलो। हाउ मेनी रिमेनिंग? अरे यार इतना टाइम लगा रहे। ठीक, कंप्लीट ऑक्टेट में देखिए, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। हाउ मच डज इट नीड? और कितना चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6. 2 है ना? 6। 6. हाँ 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। राउंडिंग एटम से स्टार्ट करेंगे। हाउ मच इलेक्ट्रॉन डज दिस ऑक्सीजन नीड? इधर वाली भी ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8. बोलो। 8 चाहिए ना, 2 पहले से है, 2 तो इसके पास है ना, बॉन्ड बना हुआ है तो। मेक सेंस? इसमें बीच में गाइस, Yes, sir. है ना। 2 इट इज हैविंग ऑलरेडी, so we need to add 6 more. तो देखिए इधर 6 इधर 6, 12 हो गया खत्म। डज दिस मेक सेंस? yes or no? please tell me. Yes, sir. अब देखिए ऑक्सीजन के पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन।
बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कार्बन एटम? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखिए अभी 2 बॉन्ड बना रहा है ना, और तो कुछ है नहीं इसके पास। 2 बॉन्ड में कितने हो गए? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए जरा। व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर थिंग सॉल्व? कार्बन शुड आल्सो बी हैप्पी ना, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। देन कार्बन विल से टू ईच ऑफ द ऑक्सीजन एटम प्लीज शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ मी। देन दिस ऑक्सीजन विल शेयर दीज इलेक्ट्रॉन, this oxygen will share these electrons, and you will get the structure something like this: oxygen, double bond carbon, double bond carbon, and यहाँ पे पहले 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर थे, अब 2 बचेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, तो उसने क्या कर दिया, कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली। नाउ स्टिल इफ यू सी, ऑक्सीजन इज मेकिंग 2 bonds, दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द पेयर। टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। दिस ऑक्सीजन एटम इज हाउ मच? 2 bonds, 4 electron, and there are 2 pairs. That means 8 electron. Got this system of Please tell me guys. इसको एक और तरीका है बनाने का, देखिए जरा। Yes, ऐसे sir. बनाते हैं इसको ना। कार्बन with its 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद we will be having oxygen 1 2 3 4, oxygen 1 2 3 4। इस तरह से कुछ सर्कल वगैरह भी बना के रखाया जाता है circle में। देखा होगा आपने ऐसा, है ना? कार्बन के पास देखिए ब्लू वाला जो रिंग है ना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इफ यू लुक एट द ऑक्सीजन ग्रीन वन, दैट इज आल्सो हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, 8 डॉट्स, और इधर वाले ऑक्सीजन में भी 8 डॉट्स। दिख रहा है सबको? सभी हाँ, जो भी था, जसीम, शायमा, जैनब, ये सब पीछे नहीं आई। Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको कॉपी कीजिए। देखिए आपको लग रहा होगा सर अभी कितना लंबा है ये। ठीक है, शॉर्टकट बताएंगे, डोंट वरी। अच्छा यहाँ पे कुछ और चीजें भी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना, एक दो चीज और लिखना होगा आपको। एक तो होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर मतलब कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 बॉन्ड पेयर है। उसके बाद होता है लोन पेयर। लोन पेयर दैट मीन्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट बॉन्डेड। एक पेयर है यहाँ पे, दूसरा पेयर यहाँ पे, तीसरा पेयर यहाँ पे, और चौथा पेयर यहाँ पे। लोन पेयर कितने? 4 है। और उसके बाद एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 into lone pair, because all the lone pairs they are not bonded. The total number of non bonded is 8 electrons. Okay, please copy this down, then we are going to look at the next one. Raise your hand once done. Just waiting for timer. लास्ट वाला लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ये जो है ना, दिस इज दिस वन। ये वाला जो है ना, ये दिस वन, दिस इज ऑल्सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये वाला भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। गॉट इट जैनब?
बताइए। Yes, sir. एनीवन स्टिल राइटिंग? जो भी आर यू राइटिंग, जो बताओ। No, sir, done. डन ना, ठीक है। चलिए, अगला है आपके पास सेकंड वाला है, सेकंड में NO2 नेगेटिव। चलिए, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। सब कोई बताना, सभी सभी किसी को चैट में बताइएगा, है ना। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए कितना आ रहा है। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? हाँ, नेगेटिव चार्ज भी है शायमा, नेगेटिव चार्ज भी है। शायमा, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। हाँ, देखिए, नाइट्रोजन हैज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। ऑक्सीजन हैज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 16। 16 टू दैट 12 प्लस 1 नेगेटिव चार्ज, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्केलेटन कैसे बनेगा इसका? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग बताइए, जल्दी बताइए, चैट में बताइए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग? यार आप लोग आंसर नहीं करते यार, हमको बहुत दुख होता है भाई। क्यों आप लोग इस तरह करते हैं? आंसर बताइए ना, कितना होगा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी बॉन्ड्स? हाउ मेनी बॉन्ड्स? चलो, हाउ मेनी बॉन्ड्स बताओ। जो बता, जसमीन, शाइमा, जैमल। इन Two. skeleton how many bonds? Two bonds. That means how many Two. electrons are used? Uh, how many electrons are used? How many electrons are 4. used? Four. Four. Remaining, remaining, 14. remaining 14. 16. 14 ना? एक Yes, सेकेंड, sir. कौन सा 16 कौन? जैनब, how many bonds? जैनब, how many bonds? जैनब माइक कौन रखी है ना? How many Two bonds? bonds. Two bonds. How many electron? 18. नहीं, दो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? ईच बॉन्ड इज मेड बाई, Four. Four. समझ में आ गया? Yeah, yeah. ठीक है, ध्यान दीजिए। 14 इलेक्ट्रॉन को पहले किसमें फिल करेंगे? सराउंडिंग या सेंट्रल? पहले कहाँ फिल करेंगे? सराउंडिंग या सेंट्रल? जल्दी बताओ। सराउंडिंग में फिल करेंगे या सेंट्रल? सराउंडिंग। सराउंडिंग में कितना? और इस ऑप्शन को कितना दे बताओ? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू आई नीड टू गिव टू द ऑक्सीजन एटम? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? जल्दी बोलो। 6 देंगे ना, दो ऑलरेडी है इसके पास। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब दो बच गया है, तो किस पे डाल दे? नाइट्रोजन पे डाल। नाउ, इज द ऑक्सीजन हैप्पी? यस और नो? इज द ऑक्सीजन हैप्पी? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम लग रहा है, लिख क्यों रहे Yes. हैं आप लोग यार? Yes, बताना है sir. अभी आपको। यस, हैप्पी, 8 इलेक्ट्रॉन। इज दिस ऑक्सीजन हैप्पी? Yes, sir. Is this of yes, it is also having 8 electrons. What about this nitrogen atom? How many electrons? How many electrons in the nitrogen atom? How many 6. electrons? Six 6. electrons. So nitrogen is not happy. So what will nitrogen do? What will nitrogen do? Double bond. हाँ, वो बोलेगा एक ऑक्सीजन को, इसको राइट वाले या लेफ्ट वाले को कि हमको क्या करो, एक पेयर दे दो। Then what will happen? Nitrogen single bond oxygen, double bond oxygen, 1, 2, 3, 4. And this overall nitrogen will be having a NO2 will be having a negative charge. चलिए, यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्डेड पेयर। हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बॉन्डेड पेयर कितने हैं? अरे 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 अरे, जल्दी बताओ। हाउ मेनी बॉन्ड? 6. कितने बॉन्ड? 6 बॉन्ड। बॉन्ड बॉन्ड कितने? बॉन्ड पेयर, दो इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनेगा, तो एक बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो कितने बॉन्ड्स है? हाउ मेनी बॉन्ड? 3. 3 हो जाएगा ना, तो थ्री पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए? नंबर ऑफ लोन पेयर बोलो, लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 5. 5, है ना। यहाँ पे 3, वहां पे 2। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड। कॉपी कीजिए प्लीज, रेज योर हैंड वंस यू डन।
ये बनाइए जरा। जो है ना उनको जरा भेजिएगा व्हाट्सएप में। जैनब, Yes, sir. can you send this on WhatsApp? Uh-huh. Yes, sir. Sabiha, are you also done? Sabiha, are you done? जिनका हो गया प्लीज। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना सैनब, बिल्कुल सही से। Yes, sir. But I could not लोन पेयर find आपने the नहीं लिखा lone है। pair. लोन पेयर का मतलब होता है कि नॉन बॉन्डेड, मतलब
कितने पेयर जो है बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं। जो बाहर बाहर लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ये आपके पास एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर, ये चौथा लोन पेयर और ये पांचवा लोन पेयर। और ये एक तो नाइट्रोजन वाला हम भूल गए थे। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी 6 और ये 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 12। ठीक है, यू गॉट इट नाउ। जैनब, लोन पेयर कौन सा होता है? Yes, sir. 16 आप तो 8 हो जाएगा। नॉन बॉन्डेड तो सही किया आपने, दैट टू बी, तो हाफ कर दीजिए। व्हाट अबाउट अदर्स? सबिहा, जोबिता, जसमीन, शाइमा, किसी नहीं हुआ अभी तक? ठीक है। जोबिता आर यू स्टक? जोबिता, जोबिता आर यू स्टक? No, certain. जोबिता आर यू स्टक? डूइंग, जल्दी कीजिए सर। जसमीन, जसमीन व्हाट अबाउट यू, आर यू स्टक? माय वॉइस ब्रेकिंग। जसमीन, आर यू डन? जसमीन की आवाज नहीं आ रही है। 1 सेकेंड। शाइमा, शाइमा आर यू डन? Yes, sir, I'm sending. जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। जल्दी भेजिए भाई, क्या हो गया? देर क्या, मेरे पास नहीं आ रहा क्या? डन। जसलीन, शाइमा, जैनब, जैनब ने तो भेज दिया। जो बेटा, जसलीन, इट हैज बीन 2 मिनट्स। ओहो यार, इतना टाइम लगाइएगा तो फिर कैसे आना पड़ेगा? देखिए देखिए, अब फिर तो सीखने का मौका नहीं मिलेगा इन सब ऐसे करेंगे तो आप लोग, इफ यू आर नॉट गोइंग टू सेंड इट क्विकली। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इज 5 प्लस इन ऑक्सीजन इज 6, 6 3 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ व्हाट? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ, अच्छा NO3 2 नेगेटिव कर दिया हमने। एक सेकंड, यहाँ पे फिर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन आ जा रहा होगा ना। NO3 नेगेटिव कीजिएगा सर जरा। NO3 नेगेटिव, ओके। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बस होगा। माय बैड, माय मिस्टेक, ध्यान नहीं दिया हमने। तो इट विल बी हाउ मच? 21 इलेक्ट्रॉन। 21 या 24? 24 है तो माय बैड। 20। उसके बाद नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अह, 18 हो गया ना? ओ वेट अ सेकंड, रिमेनिंग हमने नहीं किया ना।
यहाँ पे -6 करेंगे तो इट विल बी 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमको। हाँ 18 हो गए, तो 6 से 6 18 हो गया ना। तो ऑल दी ऑक्सीजन आर हैप्पी। 24 इलेक्ट्रॉन्स ना जिसलिन। NO3 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव नहीं, NO3 नेगेटिव। माइक ऑन करके प्लीज बात करें, हमको समझ में नहीं आता, चैट में प्लीज मत लिखा कीजिए, ठीक है। इफ यू आर आस्किंग अ डाउट प्लीज टर्न योर माइक ऑन, आस्क मी। नाउ प्लीज सी ऑल दी ऑक्सीजन आर हैप्पी, ऑल दी ऑक्सीजन आर हैप्पी एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कितने हैं? नाइट्रोजन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, इट नीड्स 2 मोर, तो ये एक ऑक्सीजन से मांग लेगा। एंड oxygen, single bond oxygen, single bond oxygen. The oxygen with double bond will be having 2 lone pairs. Oxygen with single bond will be having 3 lone pairs, and oxygen with single bond will be having 3 lone pairs. Overall, there will be a negative charge on this particular NO3 negative. If I talk about the number of bonded electrons, this will be equal to 1, 2, 3, 4. There are 4 bonds. Bonded electrons mean bonded pair. Number of bonded pair of electrons. पेयर कितने हो जाएंगे? दिस बी 4 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, 4 पेयर है। नंबर ऑफ लोन पेयर will be equal to how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 lone pairs. Number of non-bonded electrons equal to how much? 16. Raima ने भेजा है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन में मेरे से थोड़ा सा ये हो गया था, इट शुड बी 24, ठीक है ना, एक नेगेटिव चार्ज होगा। चलिए, रेज योर हैंड इफ यू आर डन गाइस, रेज योर हैंड इफ यू आर डन। चलिए, एक और स्ट्रक्चर है ओजोन का, दैट इज O3। कितना कर लिया हम लोगों ने? 3। फोर्थ लिखिएगा, O3। ठीक है, देखिए अब ना थोड़ा सा हम आपको बताते हैं सीधा सीधा कैसे कर सकते हैं। यू हैव सीन दैट जनरली ऑक्सीजन क्या करता है? जनरली ऑक्सीजन मेक्स अ डबल बॉन्ड, ठीक है ना। जनरली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड बनाता है, देन इट इज गोइंग टू हैव 4 लोन, मतलब 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इफ इट इज मेकिंग अ सिंगल बॉन्ड देन देयर विल बी 3 लोन पेयर के 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो O3 का ऐसे हम लोग करने की कोशिश करते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू हाउ मच? 6 into 3, 6 into 3 that is equal to 18। ऑक्सीजन कैसे? बीच में ऑक्सीजन, इधर और इधर भी ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ आना बताए। अब यहाँ पे देख लीजिए, दिस लास्ट, दिस मिडिल, सॉरी दिस मिडिल वन, इट इज नॉट हैप्पी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, दिस विल बिकम व्हाट? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड फिर उसके बाद 6, ठीक है। तो टोटल 18 होगा। ये आपके पास क्या आ गया? ओजोन का आ गया। 5 CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। कार्बन सीधा कर दीजिए आप, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखिए वन वे टू दैट, टू डू द होल टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एवरीथिंग, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखिए, देयर इज 2 नेगेटिव चार्ज। अब जब आपके पास नाइट्रोजन के पास, फिर ठीक है, इसको बना के ही देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन में यानी कि देर आर 2 नेगेटिव चार्ज। आप एक बार डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसको कर दीजिए, नहीं छोड़ो ना, ऐसे करो, सिंपल वाला टोटल बैलेंस करता। टोटल बैलेंस इज इक्वल टू 6 प्लस 18 प्लस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ऐसे ही है ना, 6 प्लस, नहीं 4 प्लस, नहीं बैड, कार्बन के लिए 4, तो दिस विल बी 24। कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो 24 माइनस 6 इट इज इक्वल टू हाउ मच? 18। तो वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 14 15 16 17 18 18 इलेक्ट्रॉन हो गए. दिस कार्बन इज नॉट हैप्पी, so one oxygen will give the electron density. इसके बाद स्ट्रक्चर जो बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कार्बन सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O. डबल बॉन्ड O के पास दो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड O के पास तीन लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड O के पास तीन लोन पेयर, एंड दिस ओवरऑल विल बी हैविंग अ चार्ज दैट इज ऑफ 2 नेगेटिव. चलिए कॉपी कीजिए, रेज योर हैंड वंस डन, देन वी आर गोइंग टू लुक एट द फॉर्मल चार्ज. Waiting for Jovita, Justine, and Shaima. Next देखिए फॉर्मल चार्ज. Try to redo, please redo all of these Lewis dot structures, है ना, whatever we have done today. फॉर्मल चार्ज में लिखिएगा, फॉर्मल चार्ज इज डिटरमाइंड फॉर ईच एटम. फॉर्मल चार्ज इट इज डिटरमाइंड फॉर ईच एटम. इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है. फॉर्मल चार्ज इट इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वंस यू हैव ड्रॉन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ना, वहां पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने माइनस द नंबर ऑफ, आपको ये फॉर्मूला लिखिएगा तो हम इसको पहले लिख देते हैं, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग number of non-bonding electron, number of non-bonding electron, और इसमें आप क्या कीजिए, half of number of bonding electron. ठीक है. नाउ सी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, नॉट दी लोन पेयर्स, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे यहाँ पे लोन पेयर कितने 8, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 16. How many electrons in the lone pair? There are 16 electrons total, है ना, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की क्या होता है. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज व्हाट इट इज, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 2 times the number of bonds. तो हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह क्या कर देती है बॉन्ड. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज. फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा मतलब, ठीक है. फॉर एग्जांपल वी हैव सीन ओजोन का स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. ऐसे याद रखिए, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विल हैव 6, इसके पास 2 और इसके पास 2. ठीक है. तो फॉर्मल अब यहाँ पे देखिए हर एक ऑक्सीजन एटम के लिए अलग अलग निकलेगा. लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, दिस इज द सेकंड ऑक्सीजन एटम, दिस इज द थर्ड ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम में. फर्स्ट इज ऑक्सीजन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन 6 माइनस हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देयर आर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू अच्छा थोड़ा माइक ऑन कीजिएगा आप लोग, आप लोग हेल्प कीजिएगा तभी सही आंसर आएगा. प्लीज कीप योर माइक ऑन ना, इसको समझना, वो माइक ऑन कर जल्दी समझ में आ जाएगा. हम बोलते रहेंगे तो हम ही सीखते हैं, हम हमको भी सीखना है. ठीक है. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम साइमा. 4. नहीं, स्ट्रक्चर को भूल जाइए आप, स्ट्रक्चर भूल गए साइमा, ये सुनो, Yes. स्ट्रक्चर भूल गए. अब बताइए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, कितने होते हैं. 6. 6 होते हैं बस, है ना. अब आ जाइए स्ट्रक्चर.
अब इस स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है पहले वाले ऑक्सीजन एटम में? 4, हाँ, 4 और लोन पेयर है। और ये पहला वाला ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? हाउ मेनी बॉन्ड्स इज इट मेकिंग? 2, 2। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? दिस एफ सी इज इक्वल टू, हमने लिखा, बोल रहे हैं हम यहाँ पे एफ सी इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। मेक सेंस? समझ आ रही है बात? yes, सेकंड हमारे लिए बताइए, एफ सी इट इज इक्वल टू हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम? कितने होते हैं? 6, 6 होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाइए, हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? 2, हाउ मेनी लोन पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इधर लोन पेयर माइनस हाउ मेनी बॉन्ड? 3, 3 बॉन्ड ना, 1 2 एंड 3। कितना हो गया? 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपके पास +1 फॉर्मल चार्ज है, +1 फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, लुक एट द थर्ड वन, बताइए। फॉर्मल चार्ज इट इज इक्वल टू, बोलो क्या करें? 6, 6 माइनस minus 6, 6 माइनस 1, 1, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? -1। मेक सेंस? ठीक है, तो yes, इसमें +1 चार्ज है और इसमें -1 चार्ज है। एंड ओवरऑल क्या है, इसी वजह से +1 एंड -1 दोनों ही है, बट ओवरऑल इट इज नॉट, ओवरऑल इट इज न्यूट्रल। कॉपी दिस डाउन। जस्ट वेटिंग फॉर जॉब। सवाल लिखिए। You need to calculate the formal charge on each atom, है ना? And NO3 negative. Calculate one formal charge on each atom. किसका? NO3 negative। ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, उसके बाद NO3 negative में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिए। For each atom, how many atoms in NO3 negative? How many atoms in NO3 negative? Hmm. How many atoms in NO3 negative? बोलो भाई। 4, हाँ, ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन हमें निकालना है।
हाँ, नाइट्रोजन के लिए भी, ऑल्सो फॉर नाइट्रोजन, करेक्ट। यू हैव टू कैलकुलेट ऑल्सो फॉर नाइट्रोजन। Send your answers on my WhatsApp. Shaima, looking at your answer. फॉर द फर्स्ट एटम ऑक्सीजन के लिए आपका आया है करेक्ट। सेकंड इज नाइट्रोजन, उसके लिए भी करेक्ट। थर्ड इज ऑक्सीजन, उसके लिए भी करेक्ट। फोर्थ ऑक्सीजन के लिए भी करेक्ट। तो ओवरऑल ओवरऑल है ना, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो ओवरऑल कितना हो गया? एक नेगेटिव चार्ज होगा ना, एंड ओवरऑल है भी एक नेगेटिव चार्ज। वेटिंग फॉर अदर्स।
भेजिए भाई, किसी का नहीं आया क्या? यस सबीहा। सबीहा बताइए, हुआ आपसे सबीहा? सबीहा। सबीहा है ही नहीं लगता है। यार कोई आंसर ही नहीं किया, बताओ। व्हाट हैपेंड? जोबिता, आर यू सेंडिंग द आंसर जोबिता? सबीहा, आर यू नॉट इन द क्लास सबीहा? भाई कुछ तो आंसर करो यार। सबीहा, आर यू नॉट नॉट इन द क्लास? जोबिता, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. Sir, जोबिता, can you explain it one more time? व्हाट? Can you explain it one more? अरे जो इतना टाइम नहीं लिया जाता है ना, बताओ। हम इतनी देर इंतजार करें, आप चुपचाप बैठे So I tried to हुए हो, find. आप पहले ही ना हमसे कहते। तो सबीहा भाई ठीक है, टेल मी व्हाट एवर यू हैव डन। ओके, डिड यू मेक द स्ट्रक्चर? जो भी तक कीप योर माइक ऑन, यार माइक क्यों ऑफ कर लेते हो तुम लोग? कीप योर माइक ऑन ना, समझ नहीं समझ में Yes. आया, ठीक है। डिड यू मेक द स्ट्रक्चर? Oh, हाँ, yes, sir. यू मेड। Yes. शो मी व्हाट एवर यू हैव डन। जो नहीं शो करेगा हम उसको एक्सप्लेन नहीं करें। सबीहा, डिड यू डू एनीथिंग? जैनब, व्हाट अबाउट यू जैनब? I'll send it, sir, right now. हाँ भेजिए प्लीज, तुरंत भेजिए, जितना किया है उतना भेजिए, एक आइटम का, दो आइटम का, जितना निकाल जल्दी। जैनब, आई हैव गॉट योर। जो बेटा, आई हैव नॉट गॉट योर स्टिल नाउ। जो आप कह रहे थे ना, सेंड मी। क्या नाम है इनका? जैनब, एंड प्लीज टर्न योर माइक ऑन। जैनब, ये Yes. अब जैसे ए बी, आपने ए बी सी किया है, तो ना कौन से ऑप्शन के लिए आपने लिखा है ए, कौन से ऑप्शन के लिए बी है, कौन से के लिए सी है? हाउ वुड आई नो? यहाँ पे जैसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम नंबर्ड इट ना, नंबर्ड दिया Yes, आइटम। sir. I forgot to number it. ठीक है, बताइए ए वाला कौन से किसके लिए है? For the डबली left बॉन्डेड और side, सिंगली बॉन्डेड? doubly bonded. डबली बॉन्डेड, सिंगली बॉन्ड? डबली बॉन्डेड के Doubly लिए। bonded. तो डबली बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड वाले ऑप्शन के लिए।
तो डबल बॉन्ड Yes, sir. ऑक्सीजन की 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें? हाउ मेनी लोन पेयर Four. इलेक्ट्रॉन? 4, sir. आपने क्या, 4 ना, ठीक है। Yes, sir. जो भी था आपको तो आया नहीं है। So देखिए, the rest are correct. व्हेन आई मेकिंग इट वंस ना गाइस, नहीं देखो, आप बताओ, आप बताइए। आपने तो हमेशा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द लोन पेयर, राइट? टी की जगह 6 होगा ना? हम्म। नाइट्रोजन का भी सही नहीं है। सी हियर गाइस, इसलिए कहते हैं पहले देख लीजिए, है ना, डोंट कॉपी नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड वांट टू आस्क मी अ डाउट, प्लीज डोंट से सर री एक्सप्लेन। आप माइक ऑन कीजिए, उसके बाद ही हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, बिकॉज सी आई डोंट नो व्हाट डिफिकल्टी यू आर फेसिंग ना। वंस यू टर्न योर माइक ऑन, देन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट डिफिकल्टी यू आर फेसिंग व्हाइल अंडरस्टैंडिंग। कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको? फर्स्ट एटम इज ऑक्सीजन एटम विच इज डबली बॉन्डेड, formal charge will be equal to valence electron in oxygen atom, not in this structure, rather in general oxygen के valence electron कितने होते हैं? 6 minus the number of lone pair electrons, 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron. There are 4 lone pair electrons minus the number of bonds. This first oxygen atom, it is having 2 bonds. This will be equal to 0. Second, nitrogen atom, the formal charge will be equal to how many, this nitrogen atom, nitrogen atom in general, it is going to have how many valence electron? 5 valence electrons minus how many lone pair electrons? There is no lone pair electrons on the nitrogen atom, so 0. Minus the number of bonds. How many bond is it making? It is making 4 bonds. So minus 4. So 5 में से 0 घटाई तो 5 ही रहेगा, and then minus 4, this will be giving you plus 1. So plus 1 charge कहाँ पे है? Nitrogen. Third formal charge, it is equal to, for oxygen atom, देखिए. So this option is going to have, this means in general oxygen atom is going to have 6 valence electrons minus how many non-bonded या फिर lone pair electrons? Lone pair electron 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lone pair electrons minus the number of bond which is equal to 1. That is also equal to 6 minus 6, 0 minus 1. Fourth is the fourth oxygen atom formal charge will be equal to, it is similar to the one which we have done previously. 6 minus 6 minus 1 ही है यहाँ पे भी, so this will be equal to minus 1. That's it. Raise your hand once you're done. Waiting for Sabiha. क्योंकि यू गाइस आर नॉट सीरियस, अब पता नहीं आप लोग इंडिया में या पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट यू कांट सी सीरियस, मतलब कुछ तो है। सम पीपल आर सीरियस जो आंसर वगैरह भेज, लेकिन जोबिता जसलीन आंसर ही नहीं आया, पिछला वाला कुछ नहीं आंसर आया। अभी भी हम बोले सर आई एम सेंडिंग करके आप लोगों ने, मतलब किसी का तो मैसेज भी है। कौन कह रहा था 1 मिनट में हम भेज रहे हैं? तभी हाँ, वेटिंग फॉर यू। इफ यू आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आप तुरंत भूल जाइएगा चीजों को। एंड इफ यू आर नॉट सेंडिंग दी आंसर, क्या पता आप लोग लिख भी रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, कैसे पता हमें? राइट, नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ limitations of octet rule. Right, number 1, not applicable for hydrogen atom. Not applicable for hydrogen atom, as
it can accommodate only two electrons. Only two electrons. Second, does not explain stability of electron deficient species. For example, lithium chloride. Lithium chloride में lithium is going to have a positive charge. That means it is going to have only two electrons. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गई है ना, दैट मींस इट इज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, बोथ द एटम्स आर नॉट हैविंग, लिथियम का नहीं है ना। उसी तरह से बेरिलियम हाइड्राइड, यहाँ पे बेरिलियम पे टू पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली बेरिलियम फ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BCl3. In this boron and this boron, they are having 6 electrons only. Similarly, borane, that is BH3, here also boron is having only 6 electrons. ठीक है, जैसे BH2 में BH2 का अगर बनाएगा तो बेरिलियम, यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे ऐसे करके हाइड्रोजन। ठीक है, देयर आर only 2 bonds. So this beryllium is only having how many electrons? 4 electrons. It is not having its octet complete. अगर उसी तरह से बेरिलियम फ्लोराइड है, अगर BF3 का बनाएंगे तो BF3 कैसे बनता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन तो हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, उससे इसका स्टेबिलिटी आ जाती है, दैट इज गोइंग टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑक्टेट। बट इफ यू लुक एट द बोरॉन एटम, दिस बोरॉन एटम के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन जो है, दे कैन नॉट मेक मोर देन वन बॉन्ड, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट मेक एनी डबल बॉन्ड्स। टू के बाद थर्ड लिखिएगा, डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ, डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, बोल देते हैं इनको इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स वो होते हैं which have having more than 8 electron in valence shell. वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल CF5, फॉस्फोरस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, हम लोग पढ़ेंगे भी बाद में। फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। इफ यू लुक एट फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड मीन 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लुईस ने तो कहा था कि सिर्फ कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। सिमिलरली वी हैव SF6, सल्फर, chlorine, 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 chlorine. There are how many bonds? 6 bonds and 12 electrons and 12 electrons. उसी तरह से IF7, IF7 में we are going to have 14 electrons in iodine. ये 12 electrons कहाँ पे? In sulfur. 10 electrons कहाँ पे? In phosphorus. 14 electrons in iodine. So all of these are having more than 8 electrons. Third के बाद fourth लिखिएगा, does not explain stability of, does not explain stability of odd electron species. For example, NO2। ठीक है, NO2 में आपके पास टू मेक द स्ट्रक्चर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 17 होता है। नाइट्रोजन में कितना होगा? नाइट्रोजन में 5 एंड ऑक्सीजन में आपके पास 12, कितना हो गया? 17। तो इफ यू मेक द स्ट्रक्चर इट इज लाइक दिस, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 2 3 4, दिस ऑक्सीजन विल बी 1 2 3 4 5 6,
This option will have only one electron here. अब यहाँ पे if you look at the nitrogen atom, it is only having 7 electrons. It is odd electron. इन जैसी स्पीशीज को बोलते हैं odd electron species, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बच जाता है. फाइन. चलिए, raise your hand if you're done. Raise your hand if you're done. चलिए, नेक्स्ट देखिएगा. तो इसमें एक और एग्जांपल लिख लीजिए फोर्थ वाले में. एक एग्जांपल और होता है NO. उसका लिखिए बॉन्डिंग थ्योरी. We have to learn two bonding theories. एक तो हम लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना और दूसरा हम लोग को पढ़ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. One we have to learn about वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा हम लोग को पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. इसको हम लोग VBT बोलेंगे एंड वी कैन कॉल दिस MOT. पहले लिखिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सिंपल फंडा ये है दैट the combining atoms will come with electrons in their orbital. ठीक है. और ये बी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा. तो बाय द वे इलेक्ट्रॉन्स को ना हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन आई विल लेटर ऑन. ठीक है. सो दीज आर हैविंग दो ऑर्बिटल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है. कंबाइनिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विल टेक प्लेस. ए का ऑर्बिटल और बी का ऑर्बिटल कंबाइन करेगा and the electrons will be held in this one orbital in opposite spin. ठीक है. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. ए और बी का फिर क्या हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन. व्हाट इज हैपनिंग हियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. ध्यान दीजिएगा. सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा. बाय द वे बोथ ऑफ दीस थ्योरीज आर फॉर कोवैलेंट बॉन्ड्स ओनली. है ना. पहला पॉइंट लिखिए कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of two half-filled atomic orbitals. Atomic orbitals. Atomic orbitals I can write AO later on. ठीक है. Atomic orbitals of their valence shell.
of their valence shell, of their valence shell. इसको लिखिएगा, greater the extent of overlapping, greater the extent of overlapping between two atomic orbitals, stronger bond is formed. Stronger is the bond. जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट रखिएगा, फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग, for effective overlapping, there must be proper orientation, between two atomic orbitals. ठीक है, between two atomic orbitals. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा बुक वगैरह में जो p के ऑर्बिटल्स हैं या फिर q के ऑर्बिटल्स हैं, उनको ऐसे लिखा जाता है प्लस एंड माइनस. देखा आप लोगों ने? हाँ या ना बताएं? Yes, sir. Have you guys seen this? देखा है ना आपने? Basically, this shape comes from an solution of an equation. Schrodinger wave equation के solution से ये plots आते हैं, ठीक है? The Schrodinger wave equation है, किसका equation है? Wave का equation. So it is something like this. तो wave में आपके पास पॉजिटिव फेज होता है और क्या होता है? नेगेटिव फेज होता है. ये जो पॉजिटिव साइन है ना, ये इस पार्टिकुलर चार्ज नहीं बताता ये, बाय द वे. इट इज सेइंग दैट आवर वेव इज अबव द एक्स एक्सिस. और ये नेगेटिव क्या बताता है? दैट आवर वेव इज बिलो द एक्स एक्सिस. बस इतनी ही सी बात ये बताता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. इट डज नॉट टेल्स यू एनीथिंग अबाउट द charge. Raise your hand if you are done till here. Then we'll talk about the types of overlapping. By the way, these are this sign तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साई का साइन, है ना? साई. साई इज बेसिकली, अगर आपको याद हो सारी चीजें ना, एम्पलीट्यूड होता है. अरे सब लिखाए थे, लिखाए थे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में. हाँ, वेव मैकेनिकल मॉडल. साई इज द एम्पलीट्यूड, है ना? देखो, साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. तो अगर पॉजिटिव है तो साई की वैल्यू पॉजिटिव, अगर नीचे है तो एम्पलीट्यूड नीचे आ गया, नीचे हो गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. राइट. साई इज द एम्पलीट्यूड. वही है यहाँ. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Anyone still writing? Yes, sir. Writing. ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं. फिर ओवरलैपिंग में मतलब कुछ सवाल भी हम लोग करना पड़ेगा, तो ओवरलैपिंग में सीख ही देते हैं. ओवरलैपिंग की वजह से आपका नहीं हो पाएगा.